Hello students, good morning. Welcome to Essays Online Classes. Students, we were reading chapter 4 Pianist Mutton of our English literature book as we said. In our last video, our topics were exercise B, answer these questions, and exercise C, think and answer, which is page number 42 of this chapter 4 Pianist Mutton. So students, we have read and solved these exercise B and exercise C, which is page number 42 of this chapter 4 in our Fair English Literature notebook in our last video. And students, today's our topic is word association, which is page number 43. Okay, so students, today we will read about word association, and included this topic word association. We will read and solve exercise F, answer this question. Exercise D, write as many words as you can think of that can be associated with the words. And last exercise F, now write a paragraph on any one of the word using the words associated with it of this chapter 4 in our Fair English Literature notebook in our today's class. Okay, so all students pay special attention to class and listen to my words clearly. Now we are going to start our 2 days class. Now we are going to read about word association. Okay, so students, look at the page number 43. Word wonder. Okay, word it means शब्द, wonder means आश्चर्य. Word wonder it means शब्द आश्चर्य. Read this word given below. Read means पढ़िए. This means यह. Word means शब्द. Given means दिया हुआ. Below means नीचे. Read this word given below. It means नीचे दिए हुए शब्द को पढ़िए. Okay, so let's read the word given below. Magic. M-A-G-I-C, magic. Okay, it's a main word, and magic means jadoo. Okay, so let's read the word which related to this word magic. Trick, T-R-I-C-K, trick. It's related to magic. Hocus pocus, H-O-C-U-S, P-O-C-U-S. Okay, it's also related to magic. And third, fantasy, F-A-N-T-A-S-Y, fantasy. It's also related to magic. Next, cards, C-U-R-S-E, cards. It's a 4-number word which is also related to magic. Juju, J-U-J-U. It's also related to magic. And your next word is mojo, M-O-J-O. It's also related to magic. Okay, so students, all these words which is given in this box, trick, hocus pocus, fantasy, cards, jojo, mojo, these words are related to magic. Okay, all these words are related to the given word magic. Okay, so students, the words given in the box are related to the word magic. The words it means शब्द, given means दिए हुए, in the box में, add means है, related means संबंधित to the word magic. It means जादू शब्द से, magic means जादू. Okay, the words given in the box are related to the word magic. It means box में दिए हुए शब्द magic word से related है. Okay, बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स मैजिक वर्ड से रिलेटेड हैं. जो बॉक्स में जितने भी शब्द दिए ना, वो इस जो वर्ड है मैजिक इससे संबंधित है. इट्स मीन कि बॉक्स में दिए हुए शब्द जादू शब्द से संबंधित हैं. ओके, वी कैन से दैट दीज वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. ओके, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते, से मीन्स क्या है, दैट मीन्स कि दीज वर्ड्स ये शब्द, आर मीन्स है एसोसिएटेड. हियर द मीन ऑफ एसोसिएटेड मीन्स स्टूडेंट होते हैं संबंधित. ओके, एंड एसोसिएटेड मीन हो गया संबंधित, विद मीन्स से. ओके, साथ में ईच अदर, एक दूसरे के. तो वी कैन से दैट दीज वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. हम कह सकते हैं कि ये शब्द एक दूसरे से एसोसिएटेड है, ये सारे वर्ड्स. ओके, जो गिवन वर्ड्स है, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं दीज वर्ड्स, ये शब्द आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. इट्स मीन एक दूसरे से संबंधित है. ये जो स्टूडेंट्स वर्ड्स है ना, टेक, हकस पकस, फैंटेसी, मोजो, जोजो, कर्ड्स, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड है. ओके, हम कह सकते हैं ये सारे वर्ड्स, ये सारे शब्द एक दूसरे के एसोसिएटेड है. ओके, एक दूसरे से संबंधित है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द डेफिनेशन ऑफ दिस गिवन वर्ड, वर्ड एसोसिएशन. ओके, स्टूडेंट्स, द मीन ऑफ वर्ड एसोसिएशन, वर्ड मीन्स होता है शब्द, एंड एसोसिएशन मीन्स स्टूडेंट्स होता है संघ या समिति. सो द मीन ऑफ वर्ड एसोसिएशन इट्स शब्द संघ या शब्द समिति. ओके, सो लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ द word association. Word association involves thinking of words that are associated by some common element. Okay, word association is a form of free speaking and writing. तो word association it means शब्द संघ या शब्द समिति, involves thinking of words, involves the meaning of involves that शामिल, of words means शब्दों का. ओके, that means जो are associated it means संबंधित है, by means द्वारा, some means कुछ, common element, here the meaning of common element that सामान्य तत्व. ओके, वर्ड एसोसिएशन इन्वॉल्व्स थिंकिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड बाय सम कॉमन एलिमेंट. इट्स मीन वर्ड एसोसिएशन या शब्द संगठन या शब्द समिति में उन शब्दों के बारे में सोचना शामिल है, उन शब्दों के बारे में विचार करना शामिल है जो किसी सामान्य तत्व से जुड़े होते हैं. वर्ड एसोसिएशन या शब्द संघ में उन शब्दों के बारे में सोचना शामिल है जो किसी सामान्य तत्व से जुड़े होते हैं. ओके, so students, we have read about word association, and I hope you must have understood about word association. You have understood about this topic, word association. Now we are going to solve exercise
solve exercise D and F. Okay, D and F and E in our Fair English Literature notebook. Okay, so students, आपकी जो first exercise है, write as many words as you can think of that can be associated by these words. Okay, it's your D number exercise, and your number exercise is now write a paragraph on any one of the words using the words associated with it. Okay, so now we are going to solve these exercise D and E in our Fair English Literature notebook. Okay, but before it, firstly we are going to read and solve exercise F in our Fair English Literature notebook, and after this we will definitely read and solve exercise D and E. Okay, which is page number 43 in our Fair English Literature notebook. Okay, so let's see exercise F. Chapter number is chapter 4, and the name of this chapter 4 is Pianist Mutton. Okay, it's mean piano वादक मटन. Okay, पियानिस्ट मीन्स स्टूडेंट होता है अ पर्सन हु प्ले पियानो. एक व्यक्ति जो पियानो प्ले करता है उसे बोलते हैं पियानिस्ट. ओके, इट्स मीन पियानो वादक मटन. सो लेट्स सी एक्सरसाइज एफ. योर एक्सरसाइज एफ इज आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, आंसर मीन्स उत्तर दीजिए. ओके, दिस मीन्स यह है, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन, इट्स मीन इस प्रश्न का उत्तर दीजिए. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एफ. योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वर्ड एसोसिएशन. व्हाट मीन्स क्या, इट मीन्स है, ए मीन्स एक, वर्ड मीन्स शब्द, एसोसिएशन मीन्स here the meaning of association, that संज्ञा समिति. what is a word association? It's mean शब्द संघ या शब्द समिति क्या है. okay, so students, your first answer is word association involves thinking of words that are associated by some common element. Word association is a form of free speaking and writing. okay, word association it mean शब्द संघ या शब्द समिति, इन्वॉल्व्स मीन्स शामिल होता है, थिंकिंग मीन्स विचार या सोच, और वर्ड्स मीन्स शब्दों के, डाट मीन्स जो, आर मीन्स है, एसोसिएटेड मीन्स या द मीन ऑफ एसोसिएटेड इट संबंधित. ओके, बाय मीन्स द्वारा, सम कॉमन एलिमेंट इट्स मीन कुछ सामान्य तत्व. ओके, फ्री स्पीकिंग and writing. okay, word association is a form of free speaking and writing. okay, word association it's mean शब्द संघ या शब्द समिति, it means है a form. okay, it's mean एक रूप of means का free speaking and writing. okay, free speaking it's mean स्वतंत्र बोलना, and writing means लिखना. okay, तो word association involves thinking of words that are associated by some common element. Word association is a form of free speaking and writing. it's mean word association या शब्द संघ या शब्द समिति बोल सकते हैं. तो शब्द संघ या शब्द समिति या वर्ड एसोसिएशन में उन शब्दों के बारे में सोचना शामिल है जो किसी सामान्य तत्व से जुड़े होते हैं. वर्ड एसोसिएशन इज अ फॉर्म ऑफ फ्री स्पीकिंग एंड राइटिंग. इट्स मीन शब्द संघ या शब्द समिति स्वतंत्र बोलने और लिखने का एक रूप है. क्लियर? लेट्स एग्जांपल. योर एग्जांपल इज मैजिक. ओके, सो स्टूडेंट, मैजिक मीन्स जादू, ट्रिक, हॉकस पॉकस, फैंटेसी, कर्स, जोजो एंड मोजो. ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू गिवन वर्ड मैजिक. ओके, तो ये सारे वर्ड्स मैजिक वर्ड से रिलेटेड है. दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू द वर्ड मैजिक. वी कैन से दैट दीज वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. ओके, तो दीज वर्ड्स ये सब आर मीन्स है रिलेटेड में संबंधित टू दी वर्ड मैजिक. ओके, मैजिक वर्ड से, जादू शब्द से, तो दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू दी वर्ड मैजिक. ओके, तो ये सारे वर्ड, ये सारे शब्द मैजिक वर्ड से रिलेटेड है, जादू शब्द से संबंधित है. वी कैन से हम कह सकते हैं दैट मीन्स कि दीज वर्ड्स इट मीन ये शब्द आर मीन्स है एसोसिएटेड विद ईच अदर. इट्स मीन एक दूसरे से संबंधित. वी कैन से दैट दीज वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. इट्स मीन हम कह सकते हैं सारे शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं. एसोसिएटेड मीन होता है रिलेटेड, संबंधित. ओके, let's see exercise D. Students, we have completed this exercise. I have answered this question and I hope you must have understood this exercise. Now we are going to solve exercise D. Okay, so let's see. So students, your exercise D is in your page number 43. Now we are going to solve this exercise D in our Fair English Literature notebook. Okay, so let's see. Exercise D is write as many words as you can think of that can be associated with these words. Okay, it's mean जितने शब्द आप सोच सकते हैं उतने शब्द लिखें जो इन शब्दों से जुड़े हो सकते हैं. ओके, तो आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए इस एक्सरसाइज डी में और आपको इनके एसोसिएटेड वर्ड्स राइट डाउन करने. इट्स मीन जितने शब्द आप सोच सकते हैं उतने शब्द लिखें जो इन शब्दों से जुड़े हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी. First number word, your first number given word is nature. Okay, nature, N-A-T-U-R-E. Nature means students होता है, here the meaning of nature that प्रकृति. Okay, and the related words with nature, we consider the associated word of nature are creation, world, earth, environment, natural world and universe. Okay, so all these words are related to the given word nature. Okay, all these words are associated with nature. Clear? Let's see second number word. Your second number word is voyage. Okay, V-O-Y-A-D-E, voyage. Okay, so students, here are associated words of voyage are journey, travel, trip,
and safari, crossing and tour. Okay, so student, all these words, journey, travel, trip, tour, crossing and safari, all these words are associated to the given word watch. Okay, let's say third number word. Your third number word is mountains. Okay, so students, here are some associated words of mountains, and these words are ranges, peaks, horns, humps, alps and summits. Okay, so students, all these words, ranges, humps, peaks, alps, horns, summits, all these words are associated with the given words mountain. Okay, let's see four number word, which is last word of this exercise D. Your four number word is summer. Okay, and students, here are some associated word of summer. These words are heat, vacation, season, spring, winter and autumn. Okay, so all these words are associated word of summer. Clear? All these words are associated word of the given word summer. Clear? ये सारी word summer word से related है. Clear? So student, we have solved this exercise D, and I hope you must have understood this exercise D. You have no problem in this exercise D. Okay, now we are going to solve exercise E, which is page number 43. Okay, in our Fair English Literature notebook. So let's see. Your exercise E is now write a paragraph on any one of the words using the words associated with it. Okay, now means अब write a paragraph. Okay, एक पैराग्राफ राइट डाउन करना है. क्लियर? अब क्या करना है आपको? एक पैराग्राफ राइट डाउन करना है एंड एनी वन. ओके, एंड एनी वन ऑफ दी वर्ड्स. ये जो वर्ड्स अभी हमने जिसके एसोसिएटेड वर्ड्स अभी राइट डाउन किए, उन वर्ड्सों में से किसी एक वर्ड्स का हमें पैराग्राफ राइट डाउन करना है यूजिंग दी वर्ड एसोसिएटेड विद इट. ओके, और इसके साथ हमें इसके एसोसिएटेड वर्ड्स को यूज़ करना है. ओके, नाउ राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ दी वर्ड्स यूजिंग दी वर्ड्स एसोसिएटेड विद इट. इट्स मीन आप किसी एक शब्द पर, ओके, इट्स मीन कि आप किसी एक शब्द पर उससे जुड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए. पैराग्राफ मीन्स होता है अनुच्छेद. अब किसी एक शब्द पर उससे जुड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने वर्ड्स के एसोसिएटेड वर्ड्स राइट डाउन किए ना, जो हमारे वर्ड्स नेचर, वॉयज, माउंटेन, समर. ओके, अब इनमें से हमें एक वर्ड चूज़ करना है और उस पर एक पैराग्राफ राइट डाउन करना है. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक नेचर इज़ द बेस्ट वर्ड. ओके, सो नेचर पे हम राइट डाउन करने जा रहे हैं पैराग्राफ. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन अ पैराग्राफ on the given word nature. Okay, nature, its mean होता है प्रकृति. Okay, the words nature and natural are used to for all the things that are normally not made by humans. Okay, its mean कि जो word है nature है ना, दुनिया की प्रकृति और प्राकृतिक का उपयोग उन सभी चीज़ों के लिए किया जाता है जो आमतौर पर मनुष्य द्वारा नहीं बनाई जाती है. ओके, तो ये नेचुरल मीन्स हो गया प्रकृति. ओके, तो दुनिया की प्रकृति और प्रकृति का उपयोग उन सभी चीज़ों के लिए किया जाता है जो आमतौर पर ह्यूमंस के द्वारा, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जाती. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट लाइन. थिंग्स लाइक वेदर, ऑर्गेनिज्म, लैंडफॉर्म्स, celestial bodies and much more are part of creation. Okay, since things like, जैसे थिंग्स हो गई, थिंग्स लाइक वेदर, ऑर्गेनिजम्स, लैंडफॉर्म्स, celestial bodies and much more are part of creation. Okay, so students, here we use a creation and it's associated the word and it's associated of nature. ये nature word का associated है. Okay, this word creation is related to nature. Okay, तो इट्स मीन हो गया कि स्टूडेंट्स कि मौसम, वेदर मीन्स मौसम, जीव, भू आकृतियाँ. ओके, मौसम, जीव, भू आकृतियाँ एंड आकाशीय पिंड और बहुत कुछ जैसी चीज़ें सृष्टि का हिस्सा हैं. ओके, तो मौसम हो गया और जीव हो गए और भू आकृतियाँ हो गई. ओके, एंड आकाशीय पिंड और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सृष्टि का हिस्सा है. ओके, एंड क्रिएशन मीन्स हो गया सृष्टि. ओके, एंड इट्स अ एसोसिएटेड वर्ड ऑफ नेचर. ये नेचर का एसोसिएटेड वर्ड है. इट्स रिलेटेड टू नेचर. द यूनिवर्स वर्ड इज एन इनक्रेडिबल वंडर दैट इंस्पायर्स अस ऑल. ओके, इट्स मीन यहाँ यूनिवर्स है. हियर वी आर राइटिंग यूनिवर्स. ओके, यहाँ पे हम यूनिवर्स राइट डाउन कर रहे हैं एंड यूनिवर्स इट्स एसोसिएटेड ऑफ नेचर. ये एसोसिएटेड है नेचर का. इट्स दिस वर्ड यूनिवर्स इट्स रिलेटेड टू नेचर. ये जो वर्ड है एसोसिएटेड, ये नेचर वर्ड से रिलेटेड है. ओके, ये नेचर वर्ड से संबंधित है. तो इट्स मीन कि द यूनिवर्स वर्ड. ओके, तो ये जो यूनिवर्स वर्ड इट्स मीन ब्रह्मांड की दुनिया एक अविश्वनीय. ओके, अनक्रेडिबल, या द मीन ऑफ इनक्रेडिबल दैट अविश्वनीय, वंडर मीन्स आश्चर्य. ओके, तो ब्रह्मांड की दुनिया एक अविश्वसनीय, जिसपे विश्वास ना किया जा सके, जिस पर ट्रस्ट ना किया जा सके. ओके, तो ब्रह्मांड की दुनिया एक अविश्वनीय आश्चर्य है जो हम सभी को प्रेरित करती है, हम सभी को इंस्पायर करती है. क्लियर? इट अंडरपिन्स अवर इकोनॉमी,
our society indeed our very existence. ओके तो स्टूडेंट्स इट्स मीन ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज ओके वास्तव में हमारे अस्तित्व को रेखांकित करता है. ओके तो हमारी इकोनॉमी इट्स मीन हो गया कि हमारी अर्थव्यवस्था को, अवर सोसाइटी इट मीन हमारे समाज को. ओके एंड इंडिया इट मीन्स वास्तव में अवर वेरी एक्सिस्टेंस, इट्स मीन कि वास्तव में हमारे अस्तित्व को रेखांकित करते हैं. ओके तो ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज वास्तव में हमारे अस्तित्व को अंडरपिन्स करते हैं. क्लियर. तो अवर फॉरेस्ट्स, रिवर्स, ओशियंस and soils provide us with the food we eat, the air we breathe, the water we irrigate our crops with. Okay it's mean कि हमारे जंगल ओके हमारे फॉरेस्ट्स हो गए, हमारे जंगल हो गए, रिवर्स हो गई. ओके एंड रिवर्स के साथ सोइल्स हो गई, हमें प्रोवाइड करती है. क्या प्रोवाइड करती है? फूड्स प्रोवाइड करती है. ओके खाने के लिए फ्रूट्स प्रोवाइड करती है और हमें ब्रीथिंग के लिए एयर प्रोवाइड करती है. ओके वाटर प्रोवाइड करती है. तो इट्स मीन कि हमारे जंगल, नदियाँ, समुद्र और मिट्टी हमें वह भोजन प्रदान करती है, हमें वो भोजन प्रोवाइड करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं जो हम खाते हैं. जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह पानी जिसे हम अपने फसलों की सिंचाई करते हैं. ओके तो इट्स मीन कि हमारे जंगल, नदियाँ, समुद्र और मिट्टी हमें वह भोजन प्रदान करते हैं जो हम खाते हैं. जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह पानी जिससे हम अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं. तो स्टूडेंट्स नेचर हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है और वी शुड सेव अवर नेचर, वी शुड केयर ऑफ अवर नेचर. हमें अपनी नेचर की केयर करनी चाहिए. ओके उसकी देखभाल करनी चाहिए. हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए. ओके एनिमल्स को नहीं टीज करना चाहिए. ओके सो स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज ई एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज ई. यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज ई. ओके सो स्टूडेंट्स today's class work is that note down exercise F, D and exercise E of this chapter 4 in your Fair English Literature notebook. It's a 2 days class work and students your homework is that learn exercise E, F and exercise E. Okay of this chapter 4 from your Fair English Literature notebook. It's a 2 days homework. आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज F, D और E अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे एज इट इज़ राइट डाउन कर. इट्स अ 2 days क्लास वर्क है. आज आपका क्लास वर्क है एंड स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज E, D एंड F ओके आप जो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज है आपको लर्न करनी है. ये आज आपका होमवर्क है. क्लियर. सो स्टूडेंट्स आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस एक्सरसाइज D, E and F. You have no problem in these exercise. Okay so students complete your classwork. Firstly note down exercise D, E and F of chapter 4 Pianist Matter in your Fair English Literature notebook and send me your work here. Thank you.